गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको टॉपिक कराया था इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कराया था स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट इंजरी हमने मीनिंग बताया था, स्पोर्ट इंजरी का मीनिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी। आज हम आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी। The various type of sport injury: soft tissue injury, bone injury, and joint injury. Soft tissue injury are the most common injury in sports. Soft tissue refers to tissue is conduct supporters and structures of organs of the body. Soft tissue include muscles, tendon, ligament, nervous fiber tissue, and fat blood tissues. Some of the explain of soft tissue injury: abduction, contraction, laceration, increase, sprain, strain, etc. Bone injury: the fracture of reflect by the bone fracture is the medical condition where the quantity of the bone broken. The scientific percentage of the bone fracture causes because the high force impact of strength. However, the fracture may also the result of the some medical condition which weaken of the bone of explain orthoposes. The fracture cause of medical condition is now of pathological fractures. Some of the explain of the bone injury: greenish stick injury, simple fracture, open fracture, complication fractures, impact fracture, stress fracture. लास्ट है हमारा जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी द cause when force push of the bone in the joint out of the ligament. Dislocation are also now of the laceration. Contact sport connect sports such as football are active and expensive. Stretching or filling cannot use dislocation. A dislocation will usually require medical treatment and in the test of emergency. The dislocation bone may be put up of place. The connective tissue supporting of joint may have survived damage. The most common joint of dislocation are finger and hands within the shoulder, beginning close behind elbow, knees, hip can be dislocation but are less common. नेक्स्ट है हमारा causes of sport injury. Causes of sport इंजरीज। क्या कॉजेज होते हैं स्पॉट इंजरी के होने के चांसेस? द नंबर ऑफ सोल्यूशन कैन बी रिजल्ट इन स्पॉट इंजरी, यानी कि अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा होता है कि स्पॉट इंजरी का बिगिनिंग अवे ऑफ द रिस्क फोर्स ऑफ फार बेटर देन पॉजिटिव themes: stretching of muscles, getting rest, and working of proper place instead of the health. Maybe pupil sport in some way of another way. They are playing of fun competitionally. One of theme: exercise of playing sport can be very beneficial to the health, but sometimes these benefit of the health of overweighting of negative thinking.
यानी कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग आती है स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हुए, तो वहाँ पर हमारे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर अपनी अपेक्षा से अधिक हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम अपनी फोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर देते हैं, तो वहाँ पे भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, या ज़्यादा एग्रेसिव होने पर भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। दीज इंजरी में बी कॉजेज ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट, रॉन्ग टेक्निक, में जस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी कि कभी कभी जो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलना, पार्टिसिपेशन नहीं करना बार बार, या प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिलना, या इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं मिलना, या फिर एक्सीडेंट से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंजरी कैन आल्सो व्हेन ऑफ प्रेजेंट इन properly conditioned to play of sport such as not warming up, searching muscles behind, यानी कि विदाउट वार्मिंग अप, कभी कभी ऐसा होता है विदाउट वार्मिंग अप के हम अपने गेम में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बॉडी हमारे रेस्ट मोमेंट पे होती है और एकदम गेम में प्ले करना होता है, तो वहाँ पे भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। द कॉजेज ऑफ स्पोर्ट इंजरी ऑफ डिस्क्राइब अबव, stop and test, sport person improve of quick spotting of test movements such as basketball, gymnastic as score taken of high number, knees and ankle injury, ankle sprain, when is athlete roll of foot and stretching of ligament। जो लिगामेंट है जो फुटबॉल और जो बास्केटबॉल होती है उसमें हमारे एंकल और नीज में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर जो हमारी होती है वो होती है स्ट्रेन और स्प्रेन इंजरी होती है। ग्राउंड ऑफ नी, शोल्डर एंड जॉइंट, बाई बार हम एक दूसरे से पुश हो जाते हैं तो हमारे वहाँ पे शोल्डर इंजरी होने के चांसेस या नी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ओवर यूज़, अपने परफॉर्मेंस से ज़्यादा यूज़ करना, यानी कि जो इतनी कैपेसिटी होती है कैपेसिटी से ज़्यादा अधिक करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे खाना खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी जैसे हम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, यदि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर भी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। न्यू एंड इंक्रीज एक्टिविटी, यानी कि अपनी समझ से नई एक्टिविटी यूज़ करना ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन, यानी जब पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर अपनी एक्टिविटी यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक होती है टेक्निक को छोड़कर अपनी ही टेक्निक यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। फैटिग, मसल्स आर कॉमन यूज ऑफ मसल्स पल्स, रेस्टिंग बिटवीन एक्टिव ऑफ एसेंशियल टू द प्रिवेंशन मसल्स पल्स, यानी कि जो हमारे मसल्स पल्स होती है उनसे डिफरेंट हम वर्क करेंगे तो हमारे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। पुअर वार्मिंग अप, जब हम कभी किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले हम कोई ना कोई वार्मिंग अप अपनी बॉडी को गर्माने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे क्लास 11th में हमने पढ़ा था वार्मिंग अप। वार्मिंग अप 2 टाइप का होता है, जनरल एक्टिव एंड पैसिव वार्मिंग अप। एक्टिव वार्मिंग अप 2 टाइप का होता है, स्पेसिफिक और, तो यहाँ पे हम वो तो बता रहे हैं, हम ये बताना है कि वार्मिंग अप हमें करना चाहिए, वार्मिंग अप से ही बाद हमें किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि वार्मिंग अप हमारी बॉडी वार्म नहीं होगी तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्ड इम्पैक्ट, हार्ड इम्पैक्ट अनदर मे बी रिजल्ट बिहाइंड इंजरी सच ऑफ स्किन पेंटर, हार्ड सरफेस, यानी कि जो सरफेस होता है ग्राउंड का सरफेस होता है, कभी कभी जब हम रनिंग करते हैं कि जैसे बास्केटबॉल है या जो बैडमिंटन है उसमें हम जो स्लाइड करते हैं, स्लाइड में हमारे एब्रेक्शन इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्पॉट इंजरी, स्पॉट इंजरी से बचने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। स्पोर्ट इंजरी इज़ ए वेरी कॉमन इंजरी इन स्पोर्ट, स्पोर्ट में इंजरी होने कॉमन होता है, स्पोर्ट में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन, हमें कुछ उपाय करने होते हैं अब बिफोर पार्टिसिपेशन। वो हमें ट्रेनिंग में ही पता चलते हैं कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट हमें
पार्टिसिपेंट में यूज़ करने हैं, जिससे कि हमें इंजरी होने के कम से कम चांस रहे। यूज़ ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट में हमें क्या क्या यूज़ करना है, हमारे फुटवेयर यानी शूज़ हमारे प्रॉपर होने चाहिए, पैड एंड ग्लव्स प्रॉपर होने चाहिए, हेलमेट होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रॉपर फैसिलिटी, किसी भी गेम को प्ले करने के लिए या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। इक्विपमेंट और फैसिलिटी प्रॉपर होगी तो ही हम उस गेम में अपने रिजल्ट दे सकते हैं। वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन एंड स्ट्रेचिंग, किसी भी गेम को प्ले करने से पहले हमें प्रॉपर वार्मिंग अप, स्किल वार्मिंग अप, अपना जनरल वार्मिंग अप, दोनों के दोनों स्पेसिफिक और जनरल वार्मिंग अप दोनों के दोनों वार्मिंग अप हमें करना चाहिए और बॉडी को कूलिंग डाउन करना आना चाहिए। एक्यूरेट रेस्ट, किसी भी गेम को प्ले आफ्टर प्ले जब हमें बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है तो प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमें गेम हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट डे हमारा गेम है, हम अभी भी एक्टिविटी और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमारा फोकस तो वहाँ एक्टिविटी में पहुँच गया दूसरी, लेकिन जो हमारा कल जो गेम होगा, नया गेम होगा, उसमें हमारा कोई फोकस नहीं रहेगा, हमारी बॉडी रेस्ट मोमेंट पे नहीं आएगी। तो हमारी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। प्रॉपर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने गेम को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। प्रॉपर ऑफिशनिंग, proper officiating should be done of reduce of chance of injury in sport field. For the example, forever within the dangers player are minimum in the chance of injury, यानी कि जो कुछ इंजरी होती है, जो ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल भी कुछ इंजरीज को रोक सकते हैं। कुछ प्लेयर एग्रेसिव हो जाती हैं ड्यूरिंग कंपटीशन, तो उनको समझाया जाता है, जो ऑफिशियल होते हैं वो उनको समझाते हैं कि भाई नहीं, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, तो यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। एग्रेसिव हो गए वो एक दूसरे को पुश करते हैं, किसी तरह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते ही हैं। ठीक है बेटा, आज हमने आपको टॉपिक कराया है स्पॉट क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉट इंजरी, कॉजेज ऑफ स्पॉट इंजरी एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पॉट इंजरी। कल का हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट एंड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ स्पॉट इंजरी, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है स्पॉट इंजरी को। ठीक है, ये आज हमारा यहीं पे टॉपिक खत्म हो गया। टुडे दैट्स ऑल।